chat box, or you may raise your hand and we shall recognize you. So, without delaying any further, let's begin the session for today. Over to you, sir. Okay. Thank you, Riddhi, for giving such a beautiful introduction. Uh, See, first thing I would like to tell all the students that I'm not I'm not a cold-blooded jurist in criminal law or a profound oracle of law in criminal side. I'm not an expert, but you can consider me as a felicitator so that we all can learn together the criminal law. See, the first thing is that in this very limited time of 1 hour or 1.5 an hour or 2 hour, I cannot explain you most of the concepts of CRPC, but I'll try my level best to confine myself to the very, very important parts of CRPC and to give you the brief overview of CRPC. As we all know that CRPC earlier in the historical time, there was no uniform criminal law. There were presidential towns and all the presidential town had their own separate procedural law. Now the procedural for all the presidential towns consolidated by first time by the Criminal Procedure Supreme Court Act in 1852. That was the first time when the criminal law was consolidated. Then the uniform law, the first time uniform law in relation to criminal law, procedural law came in 1882. Then there were many amendments in 1898, 1990, 1933, 1955. Then Law Commission report was there, which gave 41st report in 1969, and it submitted its report to the government. Then there was a draft bill of 1970. Then CRPC 1973 came in existence. Assent of the president was given to this Criminal Procedure Code 1973 on 25th of January 1974, and CRPC came in effect on 1st of April 1974, and then there were various amendments 2008, 2013, and so on. So this is about the brief historical aspect, which is not so relevant for exam purpose and so on. But since the topic is like that, so it's better to take you through the history. Now, as we all know that in CRPC there are 37 chapters and 484 sections, and there are 2 schedules. Okay. Now, let's understand this from where it starts. Okay, so if you look at this, so CRPC is divided in 3 parts. The first part is punitive aspect. Okay, punitive aspect. Second is preventive aspect, and third is quasi civil or criminal aspect. Punitive aspect में again it is divided in 3 parts. It's a pre-trial, trial, and post-trial. Okay. Punitive aspect में प्री ट्रायल, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल का क्या मतलब है? अब प्री ट्रायल का मतलब होता है, सो फॉर एग्जांपल आपका सब कुछ इसमें आ जाता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया, अरेस्ट हो गया, है ना, कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट हो गया, कॉग्निजेंस लेना, कमिटल प्रोसीडिंग्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस, वी विल गो. Then in trial, there are various kinds of trial. We are in the punitive aspect now. In trial, we have summary trial, we have summon trial, warrant trial, okay, trial before magistrate, before session judge, and so on. In the post-trial procedure, we have judgments, we have appeal, we have review, revision, and so on. So this is the punitive aspect, which is the very, very important part of CRPC. In CRPC, if you look at the judicial service examination, the most important part in any judicial service examination or in any competitive examination is the pre-trial part. And pre-trial part is the confusing part, actually. It's a bit complicated part. Then the trial part, and then the post-trial part. Okay. Now, if you look at the preventive aspect of CRPC, it is very small part. In preventive aspect, you will see the keeping the peace and good behavior will come, section 106 to 123. Then maintenance of peace and tranquility, which is this again. Then chapter 11, preventive action of the police. This will come. Okay. Which is chapter, the keeping the peace and good behavior is chapter 8, maintenance peace of tranquility is chapter 10, and then preventive action of the police is chapter 11. Now there is a quasi civil and criminal aspect. Chapter 9
which falls under section 125 to 128, जिसमें हम maintenance पढ़ते हैं, maintenance of wife, maintenance of parents, all that part comes. So CRPC is confined to this much only. But if we go into detail of it, suppose if we are going into today I'm going to tell you the punitive aspect of it, and I'm going to confine myself to the pre-trial part. Okay, I'm going to confine myself to the pre-trial part and not going to beyond it. So let's understand the pre-trial part. Okay, pre-trial part, because it is the most important part and bit complicated. And let me guarantee you, if you have understood the pre-trial part, you will be understanding 70% of the CRPC. Okay, तो pre-trial part में क्या क्या आता है? Let's see this. सबसे पहले हम देखते हैं pre-trial part में हमें हमेशा एक चीज समझनी है. We have to understand one thing in when we study the procedural law, we just cannot go on the basis of the books. Okay, we have to understand the practical aspect of it, that how procedure functions. Okay, so in procedure law, for example, CPC and in CRPC, now what is the first thing we are going to do? What is the first thing which is going to happen? Anyone can answer me also. Okay, let's make it the interactive session, not the monotonous session. So anyone can tell me what happens in pre-trial procedure? Can anyone tell me? Not in pre-trial procedure. So my suggestion to everyone is that kindly just forget whatever you have studied in CRPC if you have ever studied it. सब कुछ भूल जाइए. Let's start from the beginning. क्या होता है सबसे पहले? सबसे पहले whether do you go to the court directly और FIR. सबसे पहले FIR हो जाती है. चलो एक बहुत अच्छा आंसर मिला हमको. सबसे पहले FIR हो जाती है. ओके, तो सबसे पहले एक चीज हमें इतनी क्लियर हुई जिसने भी आंसर किया है कि हम सबसे पहले कोर्ट नहीं भागते हैं, है ना. सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सीआरपीसी चेक नहीं करते हैं. सबसे पहले हम इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट नहीं देखते हैं. अगर सबसे पहले अगर आप कोई चीज देखोगे तो वो क्या होती है, कोई भी क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑफेंस कमिटेड. सबसे पहले ऑफेंस होगा तभी तो सीआरपीसी आएगा. करेक्ट. सबसे पहले हम कोई ऑफेंस कमिट करेंगे या कोई ऑफेंस कमिट करेगा तब तो क्रिमिनल लॉ का चीज आएगा, है ना. तो एक जो इन्होंने चीज बोली कि सबसे पहले एफआईआर होगा. एफआईआर किस बेस पे होगा? सबसे पहले होगा कि ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, चलो अब ऑफेंस कमिट, लेट्स थिंक दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. जब ऑफेंस कमिट हो जाता है उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? वी आर अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द बेसिक्स. आई एम कंसीडरिंग यू डोंट नो एनीथिंग. ओके, offense has been committed. What will happen first? You will go to the police station. Correct. This is how a common person will do. Because suppose अगर कोई इंसान गांव से है, उसके साथ कोई क्राइम हो गया या उसने कोई क्राइम देखा है, वो सबसे पहले कोर्ट तो नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 200 कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए और समथिंग लाइक दैट. ही विल इमीडिएटली रश टू द पुलिस स्टेशन. लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन एंड जो भी है उनको सब कुछ बता दो. करेक्ट. तो ऑफेंस जैसे ही कमिट होता है, इमीडिएटली आफ्टर दैट व्हाट यू डू, यू मूव टू पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में क्या फाइल करते हो आप? कंप्लेन. ओके, एक बहुत अच्छा आंसर मिला कि हम पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट देते हैं. ओके, तो हम यहां पर लिखते हैं पुलिस इंफॉर्मेशन एंड नॉट पुलिस कंप्लेंट. आई टेल यू द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग द पुलिस नॉट पुलिस कंप्लेंट एंड व्हाई पुलिस इंफॉर्मेशन. बहुत सारे जजमेंट्स आपको हाई कोर्ट के और वेरियस हाई कोर्ट्स के, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे मिलेंगे जो रेफर करते हैं वर्ड कंप्लेंट. ओके, कि हम पुलिस को पुलिस कंप्लेंट देते हैं एंड द पर्सन हु लॉजेस द पुलिस कंप्लेंट ही बिकेम द कंप्लेनेंट. ओके, but that is not the right concept. If you look at section 2D of CRPC, you will find the word complaint. So complaint is something what you are writing to the magistrate and not to the police. So the complainant is the person who is giving complaint directly to the magistrate and not to the police. That is why the legislature has intentionally used the word information. So when you look at section 154 and 154 subsection 2, you will find 154 subsection 1 what it says. Let's see section 154 subsection 1 first. Okay, let's see this. Just a minute.
हमें पहले अपने जो बहुत बेसिक से उनको सुधारना है. वी डू नॉट गिव अ पुलिस कंप्लेंट. ओके, वी गिव पुलिस टू इंफॉर्मेशन. सो लेट्स रीड इट. What this are you everyone is able to see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, see this. So it says information in cognizable cases. तो ये बोलता है every information relating to the commission of cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant. What is the word used? Informant. Okay. And every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such an officer as form as the central government may prescribe in this behalf. Now look at subsection 2. A copy of this information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant. So first thing we need to understand, what is that? The first thing is that whatever we give to the police, it is not a police complaint. Nowhere the police complaint word is there in CRPC. It is called the police information or information to the police. Now, who are you? You are the informant. And this thing was pointed out by the Supreme Court in its landmark judgment. It's called Ganesha versus Sharanappa. If you want to write, you may write it. Ganesha versus Sharanappa, 2014, volume 1, STC, page number 87. And if you look at the last paragraph of this judgment, the judgment says that the word police complaint is not a word of literature. Okay, this is the obliterate practice. This is the obliterate practice which is being followed in the court. So it is not, again, the first thing I would like to make you clear again, that whatever we give to the police is the police is a police information or information to the police. And who we are the informant, or any person who is giving information to the police. He's an informant, not a complainant. Okay. Now, and which is also very clear by section 2D of CRPC and read with section 154 subsection 1 and subsection 2. Okay, this question has been asked in interview many times, okay, in civil judge exam. So you have to be very careful when you use the words. Okay, so I'm again coming back to, I'm removing this, erasing this. So offense committed. Let's come back to the procedure now. बिल्कुल एकदम बेस से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ हमारा ऑफेंस कमिट हो गया। ऑफेंस कमिट होने के बाद में क्या होगा, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन फॉर गिविंग info to पुलिस, ओके, एंड वी बिकम द इन्फॉर्मेंट। जब पुलिस उस इंफॉर्मेशन को देखती है, अगर आप पुलिस में हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ उसमें ऑफेंसेस दिए रहेंगे, कुछ ना कुछ बताया जाएगा, है ना। उसमें क्या बताया जाएगा कि मैं वहां से जा रहा था, कोई मेरे पीछे से आया, कोई मेरा पर्स चुरा के ले गया, हो सकता है ये बताया हो। या उसने बताया कि मैं वहां से जा रहा था, किसी ने मेरे सर में बियर की बोतल फोड़ दी, हो सकता है ये बताया हो। या मैं बोलूंगा कि, या कोई लड़की जा रही, वो बोलेगी कि मैं वहां से जा रही थी, मेरे ऊपर असॉल्ट हुआ और क्रिमिनल फोर्स हुआ और मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। नाउ व्हाट विल हैपन, दैट पुलिस ऑफिसर or that the who's in charge of the police station, what will happen, he will read your complaint, he will find out that the offense which you are trying to mention, suppose if you are an advocate, you will write a very beautiful language in the complaint which will be very easy to understand कि cognizable offense है या non cognizable offense है। but जब कोई छोटे शहर के होते हैं, गांव के होते हैं, या लेमैन होते हैं जिनको लॉ नहीं पता होती है, बड़े बड़े शहरों में भी जो लेमैन होते हैं, they write a very simple language। जो मैंने आपको बोला कि मैं वहां से जा रहा था, किसी ने मेरी इज्जत में हाथ डाला, या किसी ने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की, whatever it is, from those lines, whatever you have given information, from those lines, what happened, जो पुलिस होती है, सपोज
I'll make it like this. ये जो लाइंस होती हैं पुलिस कंप्लेंट, पुलिस इंफॉर्मेशन की, दिस इज अ पुलिस इंफॉर्मेशन. ओके, सपोज पुलिस इंफॉर्मेशन. इसमें से जो भी वो पुलिस वाला होगा, जो भी होंगे, वो क्या करेंगे, वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ रहा है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ रहा है. ठीक है, सो लेट्स फाइंड दिस आउट. वो इस कंक्लूजन पे आए, कि ये जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या हो सकता है इस कंक्लूजन में आए कि ये नॉन, और ऐसा लिखते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या हो सकता है ऐसे में आए कि वो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं. क्योंकि कई बार होता है एक ऑफेंस तो नहीं होता, कई बार एट द सेम टाइम बहुत सारे ऑफेंसेस के चार्ज आपने देखे होंगे, है ना. तो सो फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब हम इसमें आते हैं. तो हम देखो सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, प्री ट्रायल प्रोसीजर. प्री ट्रायल में सबसे पहले क्या हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ. ऑफेंस कमिट होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन भाग रहे हैं फटाफट. ठीक है, पुलिस स्टेशन भागने के बाद में जो पुलिस वाले हैं, हु इज इन चार्ज ऑफ योर कंप्लेंट, जो भी आपने दी है, वो ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. अभी सी यू अंडरस्टैंड वन थिंग, अभी एफआईआर की स्टेज ही नहीं आई है. वी हैव नॉट इवन रीच टू एफआईआर स्टेज. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल बोथ है. व्हाट इज दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस नाउ? इफ यू look at section 2C, it is given under section 2C the meaning of cognizable offense. क्या होता है, जिसमें पुलिस हैज पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट. ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां दिया हुआ है, सेक्शन 2L. क्या होता है, पुलिस हैज नो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट. ओके, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल मतलब ऑब्वियसली कि एक चीज में दो दो ऑफेंस है. एक आपने कंप्लेंट दी है जिसमें आप बोल रहे हो कि मैं वहां से, सपोज कोई लड़की अगर वो बोल रही कि मैं वहां से जा रही थी और कोई एक ऐसा कोई पीछे से आया और उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, रॉबरी करने की कोशिश की, और उसने मेरे को धक्का भी दिया है और मेरी मॉडेस्टी को भी आउटरीच करने की कोशिश की है. तो इफ यू लुक एट दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस का हम अगर एक एग्जांपल दें, सो लेट्स सी सेक्शन 354 IPC. Okay, it's a cognizable offense. Section 355 IPC. Okay, it's a non cognizable offense. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर सपोज हम पुलिस वाले हैं या हम इस कंप्लेंट को देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. सो एज आई टोल्ड यू, द सीआरपीसी हैज टू शेड्यूल. इफ यू लुक एट द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि अगर आप बेयर एक्ट है आपका, बेयर एक्ट के लास्ट में फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल है. तो अगर आप फर्स्ट शेड्यूल देखोगे, फर्स्ट शेड्यूल में देयर इज अ टेबुलर चार्ट. टेबुलर चार्ट में आप सारे ऑफेंसेस चेक करिए, आपको सारे ऑफेंसेस के सामने मिलेगा कि दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, दिस इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दिस इज बेलेबल ऑफेंस, नॉट बेलेबल ऑफेंस, एंड सो ऑन. So in according to the first schedule, from the first schedule, you will find out whether the offense is cognizable offense or it is a non-cognizable offense. Okay. अब कई बार क्या होता है, आप पुलिस के पास में जाते हैं और आप ऐसी कंप्लेंट देते हैं कि मैं वहां से जा रही थी और किसी ने इस तरीके से मेरे को मारने की कोशिश करी, असॉल्ट करने की कोशिश करी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश कर रहा है और मेरे को डिसऑनर कर रहा है. ओके, विद इंटेंट टू डिसऑनर मी. तो दोनों सेक्शंस लग जाएंगी, सेक्शन 354 भी लग जाएगी एंड सेक्शन 355 भी लग जाएगी इस टाइम पे. ठीक है, सेक्शन 354 एंड सेक्शन 355 दोनों का पुलिस ने क्या किया, एफआईआर दोनों पे कर ली, दोनों सेक्शन पे. मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूं कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ रेलिवेंस फॉर स्टार्टिंग द क्रिमिनल लॉ, द क्रिमिनल प्रोसीजर. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट
एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सेक्शन 354 आईपीसी, ठीक है, इसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। समटाइम आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने पुलिस को दी है वो बोलेगी कि मुझे आउट मोडेस्टी तो आउटरेज नहीं कर सकता क्योंकि सपोज मैं मेल हूं लेकिन उसने मेरे को असॉल्ट किया है और मेरे को डिसऑनर करने के लिए विद इंटेंट टू डिसऑनर मी, ओके, और समटाइम आप दोनों चीजें बोलते हो तो पुलिस क्या करती है, दोनों सेक्शन लगा देती है। तो ये तीन चीजें होती हैं। जब पुलिस को ये पता चल गया कि इन तीनों कैटेगरी में से आपने जो लाइंस लिखी हैं जो मैंने यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट, ये जो चीजें हैं, पुलिस क्या करेगी, पुलिस विल, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पुलिस को दी है, यहां पर हूं मैं अभी, इंफॉर्मेशन जो भी आपने पुलिस को दी है, अगर पुलिस को लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, इफ इट इज cognizable offense, then what will happen, then police will register FIR, ठीक है। अगेन एक और चीज, if police comes to know that offenses are both, तो कोई एक ऑफेंस, सपोज 354, एक ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों नहीं हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ऑफेंसेस, टू सेपरेट ऑफेंसेस, ठीक है। सपोज रॉबरी भी हो गई और आउटरेज ऑफ मोडेस्टी भी जो भी है आपका सेक्शन 354 वो भी लग गया, तो सॉरी डिसऑनर विद 355 लग गया, तो दोनों हो गया नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल। कई बार ऐसा होता है ना, तीन तीन चार चार सेक्शंस लगे होते हैं, आई मीन दैट पॉइंट। सो ये पुलिस कम्स टू नो कि यार जो ये लाइंस हैं, जो ये कंप्लेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों ऑफेंसेस को डिस्क्लोज कर रही है। किसको किसको, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, ये दोनों को क्या कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है इंफॉर्मेशन। देन अगेन पुलिस विल रजिस्टर FIR, okay, and it will be treated as cognizable case as per section 155 subsection 4 if you look at। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस हैज टू रजिस्टर द FIR एंड पुलिस नॉन कॉग्निजेबल केस उसको कंसीडर नहीं करेगी। अगर उसमें दो सेपरेट ऑफेंसेस हैं, देन व्हाट विल हैपन, पुलिस उसको कॉग्निजेबल केस मानेगी। अगर एक कॉग्निजेबल है और एक नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस क्या करेगी, उसको कॉग्निजेबल केस मानेगी। सो कॉग्निजेबल प्लस कॉग्निजेबल इज इक्वल टू कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑल्सो इज इक्वल टू कॉग्निजेबल। उसकी सारी प्रोसीजर कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली पूरी होंगी। पुलिस कैन नॉट से कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल में हम लाएंगे, दे कैन नॉट से एज पर सेक्शन 155 सबसेक्शन 4, ओके। और दूसरी चीज होती है, if information discloses the non cognizable offense, तब क्या होगा, then police will not register FIR but will send the same to magistrate। So without permission of the magistrate they cannot register FIR। तो वो क्या रजिस्टर करते हैं, वो NCR रजिस्टर करते हैं। NCR क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। एंड until or unless magistrate directs them to investigate the matter, they cannot investigate the non-cognizable offense, okay। And if they are investigating the non-cognizable offense without the prior permission of the magistrate, that will be termed as illegal investigation, okay। Now ये तो हो गई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात। इतना सबको समझ में आ रहा है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस मच। सबसे Yes, पहले sir. हाँ, सबसे पहले ऑफेंस कमिट हुआ। ऑफेंस कमिट करने के बाद हम कहां पहुंचे थे, हम पुलिस स्टेशन रश हुए थे, जिसमें हम बने थे पुलिस इंफॉर्मेशन हमने पुलिस को दी थी, हमने उसमें गणेशा वर्सेस शनप्पा केस पढ़ा, ठीक है। आफ्टर दैट दैट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोजिंग थ्री टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस वी रेड, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल बोथ। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों में, मतलब कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल अगर दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो वो कॉग्निजेबल की प्रोसीजर फॉलो होगी, हमें इतना क्लियर हुआ।
अब हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR. Why so? So when any information discloses the cognizable offense, police is bound to register FIR. Okay, why so? So understand it. There is a judgment called Lalita Kumari versus State of UP. Very, very important judgment. 2014 to SCC 1. This was the Constitution Bench judgment given by the 5-judge bench. And para number 120 of this judgment is very relevant. Para number 120 will tell you, it is the last paragraph, almost last paragraph, and para number 120 is divided in many parts. So para number 120 will give you the crux of the whole case. So it says, this judgment says that if any information given to police discloses the cognizable offense, police is bound to register the FIR. Okay, this much is clear. Now, one thing we have understood, that FIR is mandatory in cognizable offenses, provided it discloses it. Now, sometimes what happens that time is taken to register the FIR. आपने कोई इंफॉर्मेशन, पुलिस को आपने इंफॉर्मेशन दी, जिसको आप कंप्लेन बोलते थे आज के पहले, आप कंप्लेन मत बोलिएगा. सो जो भी आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, पुलिस उसको परसू करेगी. और पहले क्या होता था, पुलिस अपना स्वीट टाइम लेती थी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कंप्लेन में ही पड़ा हुआ है मैटर, इवन इफ इट इज डिस्क्लोजिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो कोर्ट ने बोला नो, रजिस्टरिंग द FIR इज मैंडेटरी. अब फिर बात आती है कि मानो वो जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई है, हमारे दिमाग में भी सबसे पहले क्वेश्चन आता ना कि सर अगर ऐसे FIR अगर हमने कोई भी पुलिस को दी, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रही है, तो फिर तो हर केस में FIR होना स्टार्ट हो जाएगा. तो क्या पुलिस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करेगी? Whether it is required to verify that information? What do you say? Anyone? अगर आपने पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दी कि सर मैंने देखा कि वो इंसान मेरे पीछे बियर की बोतल लेके या छोरा लेके मेरे पीछे दौड़ रहा था, उसने मेरे को मारने की कोशिश करी और बिल्कुल मैं बच गया, वरना मैं मर जाता. आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी कि किसी कोई मेरे पास गन लेके आया, उसने ऐसे गोली चलाई और मेरे बगल से निकल गया, मैं मरते मरते बच गया. वेदर पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR और वेदर पुलिस कैन वेरीफाई द इंफॉर्मेशन? व्हाट डू यू से? Sir can verify the information. Whether police at the time of registering the FIR can verify the information? This is the question. और कोई आंसर देना चाहेगा? I'll tell you one more thing. As I told you कि जब भी आपकी कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करेगी, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR. बट पुलिस हैज गॉट अ टाइम इन दैट जजमेंट, इन 2014 जजमेंट में. ये इसका डेट बता देता हूं मैं आपको. The date of this judgment was 12 November 2013. Okay, 12 November 2013 this judgment came. तो पुलिस ने इसमें टाइम, so there was one more important finding in the judgment to conduct the preliminary inquiry. Okay, what is this preliminary inquiry? Preliminary inquiry होता है कि पुलिस उसके कंटेंट को पढ़ेगी, and the time Supreme Court says कि no, you have to register the FIR, then whether police cannot conduct the preliminary inquiry. What is the meaning of this preliminary inquiry? What is the meaning of preliminary inquiry by the police? So whether at the time of registering the FIR, whether police can conduct the preliminary inquiry, or whether जब पुलिस ये preliminary inquiry conduct करती है, whether it can verify the information. So the law is well settled that the preliminary inquiry can be conducted by the police, but not to verify the information, but only to see that whether the information given by the informant discloses the cognizable offense or not. That is it. It means police cannot
go and verify the information कि नहीं हम पहले जाएंगे, हम देखेंगे ये घटना हुई कि नहीं हुई. That is not the purpose of FIR. If you look at the first FIR full form, it's called the first information report. So FIR is different from arrest. What court is saying that the time you get the information, you register the FIR if it is disclosing the cognizable offense. We are not asking you to arrest the person, but you register the FIR. And if you find that there, in later stage, if you find that there was nothing in the case, you can find the closure report in later stage. You can release the person if you are arresting. We'll come to that part later. बट बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज ये होते हैं जब ललिता कुमारी जजमेंट पढ़ते हैं, एंड व्हेन इवन द एडवोकेट्स आल्सो. कंफ्यूजन कहां पर होती है? ललिता कुमारी जजमेंट सेज दैट पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, बट दिस जजमेंट सेज दैट 7-day टाइम पीरियड इज अलाउड फॉर द पुलिस टू कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. ओके, नाउ व्हाट पुलिस अंडरस्टैंड दिस जजमेंट दैट दे कैन वेरीफाई द इंफॉर्मेशन. So this preliminary inquiry is not for verifying the information, but only for conducting the inquiry so as to find out whether the offense or the information falls under the cognizable offense or non-cognizable offense. That is it. Because sometimes, you know what happens? There are so many laws. For example, the Manual Scavengers Act, which I was talking about, Prevention of Manual Scavenger 2013 Act is there. अब मैं पुलिस के पास गया. It's a real example which I'm giving you. तो मैं पुलिस के पास गया और मैंने बोला कि वहां पे कुछ लोग सीवर साफ कर रहे हैं. सीवर मतलब आप समझते होंगे ना सब लोग, सीवर जिसमें बहुत सारी गंदगी होती है, लोग उसको साफ कर रहे होते हैं, है ना. तो दैट इज प्रोहिबिटेड एंड दैट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो मैं जैसे ही एसएचओ साहब के पास में पहुंचा, मैंने बोला कि सर दिस इज अ यू रजिस्टर द एफआईआर अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर. व्हाई? बिकॉज ही इज आस्किंग द लेबर टू गो इनसाइड द सीवर विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, व्हिच इज नॉट राइट, व्हिच इज प्रोहिबिटेड. तो एसएचओ told me that whether this law exists. So in that time, if you see, he was not knowing that whether it is a cognizable offense or non-cognizable offense. This is the practical aspect which I'm telling you. So in that judgment, he was given first 7 days time to conduct the preliminary inquiry. So he can go through this Manual Scavenger Act. He can find out, okay, this is the offense and this is the cognizable offense. Okay, he's not allowed to verify the information, but he can only check whether the information is a cognizable or non-cognizable. That is it. So the time he comes to the conclusion that is a cognizable offense, no option is left and he has to register the FIR. Have you understood this much? Everyone? Any doubt till here? किसी को कोई डाउट है इसमें? Any doubts? मीनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और जो भी ये मैंने बताया अभी तक? Okay, no doubt. I'll assume that you have understood this much. तो आपने इंफॉर्मेशन दी, it is disclosing the cognizable offense as per Lalita Kumari case. The police is bound to register the FIR. So earlier, why I gave you this date? Because earlier there was 7 days time for the police. But again, Lalita Kumari judgment में ये पैराग्राफ को अमेंड किया गया, मॉडिफाई किया गया इस पैराग्राफ को. इन इट्स ललिता कुमारी का ही ऑर्डर था, ऑर्डर डेटेड March. There's a March order. Okay, March 5, 2014, and the time for preliminary inquiry by the police extended to 15 days, and in exceptional circumstances to 6 weeks. So this is the maximum time which has been allowed by the court to the police. Okay, कि आपके पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में आती है, आपके पास मैक्सिमम 6 weeks का टाइम है, एंड इफ यू आर टेकिंग 6 weeks टाइम, यू हैव टू एक्सप्लेन द डिले. ओके, सेकंड थिंग, अब क्या होगा? पुलिस इंफॉर्मेशन को क्या करती है? पुलिस बोलती है नहीं नहीं, देयर इज नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इन दिस. So police has to inform you that there is no cognizable offense. This is also laid down in Lalita Kumari case in paragraph 120. So we have to understand 3 things from Lalita Kumari. First, if there is a cognizable offense, police has to register the FIR. The police can conduct the preliminary inquiry, but only to the point of
disclosing the cognizable offense or not disclosing the cognizable offense. That is it. Police cannot verify the information. जो पुलिस जनरली करती है, that is wrong. Okay. अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, जहां पर हम थे. कहां पर थे? ऑफेंस कमिट हुआ, आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने फाइंड आउट किया कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है. बहुत अच्छी बात है. हम जाते हैं, आप पुलिस को आपने इंफॉर्मेशन दी, पुलिस ने फाइंड आउट किया कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है. नाउ व्हाट विल हैपन? पुलिस, दो ऑप्शन होंगे. पुलिस विल रजिस्टर द एफआईआर, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं. और क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर ही नहीं सकती, एज आई टोल्ड यू नो, एनसीआर फाइल करती है, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेती है. सो वी आर ओनली इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस. ओके. तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इधर पुलिस विल रजिस्टर द एफआईआर और पुलिस विल नॉट रजिस्टर द एफआईआर. ये दो ऑप्शन होंगे. करेक्ट. हम अभी चलते हैं इस एस्पेक्ट में कि एक आइडियल स्टेट में चलते हैं कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लिया आपकी. कई बार ऐसा होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भी आप चिल्लाते रहो, पुलिस बोलती है नहीं नहीं हम नहीं करेंगे एफआईआर रजिस्टर, आप जाइए. तो हम उस वाले एस्पेक्ट में बाद में आएंगे. ठीक है. सपोज पुलिस हैज रजिस्टर्ड द एफआईआर. नाउ इफ यू आर अ पुलिस ऑफिशियल, आपने जो भी सीआरपीसी पढ़ा है आप सब कुछ भूल जाइए. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, कुछ याद नहीं रखना है. वी आर गोइंग बाय ईच एंड एवरी स्टेप. नाउ पुलिस विल रजिस्टर द एफआईआर एंड पुलिस हैज रजिस्टर्ड द एफआईआर. अब आप एक बार एफआईआर का फॉर्मेट देख लीजिए, क्योंकि कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वही एफआईआर होती है या एफआईआर कुछ अलग से होती है. सो व्हाट विल हैपन दैट यू गिव द पुलिस इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, और जो भी आपका होता है बोल के. देन एज पर सेक्शन 154 पुलिस विल, जो भी ऑफिशियल होंगे, या तो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और जो भी उनका सबऑर्डिनेट होगा, वो उनको बोलेगा कि राइटिंग में आप इसको लिखो. नाउ लुक एट दिस, आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑफ एफआईआर फर्स्ट. तो आपको एफआईआर समझ में आएगा पहले. जस्ट मिनट. ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, एवरीवन? Yes, sir. This is the format, how it makes, how they make it. So district, Shahadra, Thana, Geeta colony, they have to give the police station. Then there's a FIR number. Okay. FIR number 0035. जो भी उस साल में एफआईआर दर्ज होती हैं, जो रजिस्टर होती हैं, अगर उस साल की पहली होगी, मानो आप 1 जनवरी को ही आपने उद्घाटन कर दिया एफआईआर का, तो 001 हो जाएगा. ओके. उसके बाद फिर दूसरी होती तो दूसरी, वैसे नंबर दिए जाते हैं. ओके. देन डेट आएगी, देन किस एक्ट के अंडर में है वो आएगा, किस किस सेक्शन में रजिस्टर हो रही है. अब देखिए 279, 337, 3048. ओके. इट मे कंसिस्ट बोथ द कॉग्निजेबल एंड अनकॉग्निजेबल ऑफेंस. ओके. देन आप देखोगे तो अक्यूरेंस ऑफ ऑफेंस आ गया, किस दिन हुआ, डेट, किस दिन से किस दिन, पूरा ये देखिए आप, कौन से पुलिस स्टेशन में एफआईआर रिसीव हुई, कहां पर दर्ज हुई, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑफ अक्यूरेंस, एवरीथिंग विल कम. एड्रेस, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, पूरा सब कुछ, रीजन फॉर डिले इन रिपोर्टिंग बाय द कंप्लेंट इन्फॉर्मेंट, जो भी अगर डिले हुई हो तो. ओके. नाउ दिस इज द कंटेंट व्हिच will be written by the officer in charge of the police station as per section 154. ऐसी उर्दू में लिखी जाती है एफआईआर. बयान अजाहे मोहन पांचाल सन ऑफ श्री संजीव पांचाल, गली नंबर इतना, बहेटा, हाजीपुर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. अब जिसको समझ में आता है उर्दू वो पढ़ लेता है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, वरना फिर वो ट्रांसलेट करवाता है. ठीक है. अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला भी था कि गिव अस द रीजन व्हाई यू रजिस्टर एफआईआर ओनली इन उर्दू इन दिल्ली. ओके. बयान किया कि मैं पता उपरोक्त पते पर रहता हूं, दिल्ली के इतने कंपनी के सिविल लाइन सफाई का काम करता हूं. सो दिस इज द एफआईआर कंटेंट. देन वेदर एक्शन हैज बीन टेकन, ये पूरा आ जाता है इस टाइप का. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एफआईआर. ओके. जो पूरा दिया हुआ है, दिस इज द ऑफिशियल एफआईआर. रेफ्यूजल इन्वेस्टिगेशन फिर ऐसा आएगा पूरा, नेम, सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर, जो भी आईओ हैं उनके, जिसने भी एफआईआर लिखी होगी, नॉट आईओ, जिसने भी एफआईआर लिखी होगी वो, ये देखिए पूरा आ गया. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ इट. ओके. let's go back to a whiteboard. तो this was the police first information report. तो हम किस पार्ट में थे कि पुलिस ने फाइंड आउट किया कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है. ठीक है.
Sometimes police neglects its duty. Why? Because once they have registered the FIR, now they have to file the charge sheet, the trial will go, police has to go and give witness, and there are so many things. Okay, so most of the time it happens that they don't register FIR, though they are bound to register the FIR if it is disclosing the cognizable offense. So in that part we will come later when they do not register the FIR. So police will register the FIR. Now tell me one thing, if you are an official, police official, what you will do? अगर एक बार FIR हो जाती है, आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, anyone can tell me please, and let's make it an interactive session. My humble request to everyone. What will happen? What you will do? Anyone? Guys, you may speak out if you want to answer. Anyone can say anything. There's no problem. So that you will understand in a better way. Procedure of arrest. Okay, एक मुझे आंसर मिला, procedure of arrest. So again, see, you are right. If arrest is required, then you can go for the procedure of arrest. No problem. Will investigate the case. Yes, correct. Very nice. One answer we get that from here the investigation will start. Investigation will start. Very nice. आपको हमेशा एक चीज समझनी है कि अगर आप एक पुलिस ऑफिशियल हैं तो आप हमेशा अंडर कोर्ट की सुपरविजन में और कोर्ट की गाइडेंस में और सीआरपीसी की गाइडेंस में काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास में इन्वेस्टिगेशन, आपने जैसे ही एफआईआर रजिस्टर करी, इन एवरी स्टेज यू हैव टू इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट। सो जैसे ही आपने क्या किया, एफआईआर रजिस्टर करी, अगर आप पुलिस में हैं, immediately you have to send the FIR or the information to the magistrate. Send the FIR or information to magistrate. This is the first thing you are going to do, and it is given under section 157 CRPC. So first thing you are going to do, the time you are going to investigate the case, the time you register the FIR, you have to send the report immediately to the magistrate. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एफआईआर इमीडिएटली नहीं भेज पाते, 4 घंटे में भेजते हैं। तो मैं कभी बाद में लेक्चर लूंगा इस चीज पे कि बहुत अफेक्ट करता है कई बार वो ट्रायल को, क्योंकि कई बार डिले एक्सप्लेन नहीं हो पाता कि आपने इतनी लेट मजिस्ट्रेट को एफआईआर क्यों भेजी है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट एस्पेक्ट नाउ, कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू द प्रोसीजरल पार्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे एफआईआर रजिस्टर हुई, इफ यू आर अ पुलिस ऑफिशियल, व्हाट द कॉमन सेंस इज, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, जिसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, क्या करोगे आप, इमीडिएटली यू विल सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157। नाउ व्हाट यू विल डू, किसी ने मुझे बोला, अब आपको, आप एक पुलिस ऑफिशियल हैं, आपको ये पता चला कि जहां पर ये चाकू मारी गई थी वहां पे बहुत सारे लोग भी थे जिन्होंने ये देखा था, आपको ये पता चला। व्हाट यू विल डू, व्हाट द कॉमन सेंस इज, फॉरगेट अबाउट सीआरपीसी, व्हाट द कॉमन सेंस इज, यू विल से दैट यू मींस पुलिस, द पर्सन who is acquainted with the facts will be called in police station. Okay, then what will happen, then there, अब बुला के क्या करोगे, चाय नाश्ता तो कराएंगे नहीं हम लोग, their statement will be recorded, their statements will be recorded. Okay, और क्या करोगे, हो सकता है हमें कोई रिकवरी की चीजें मिले, कोई वो हमें चीज बताए, तो हम, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है तो हम जो भी हो सकता है हमसे इन्वेस्टिगेशन के लिए, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम करेंगे, है ना। और क्या हो सकता है, हम सर्च कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, सर्च करेंगे, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रूथ। ओके, हम सर्च करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, किसी ने मुझे आंसर दिया था कि हम अरेस्ट भी कर सकते हैं। सो इफ आफ्टर डूइंग एवरीथिंग वी फाइंड आउट दैट इन ऑर्डर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन अरेस्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हम क्या करेंगे, जो पुलिस ऑफिशियल रहता है वो अरेस्ट भी करेगा। किसको अरेस्ट करेगा, अक्यूज्ड को, जिसके अगेंस्ट में वो इंफॉर्मेशन
आई थी, अगर उनको लगता है कि भाई अक्यूज्ड को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है वरना ये भाग जाएगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, द पर्सन विल बी इमीडिएटली अरेस्टेड. दिस इज ऑल कॉमन सेंस. वी आर नॉट एट ऑल गोइंग इनटू द सीआरपीसी. अगर आप भी पुलिस ऑफिशियल हैं, आपके पास कोई केस आता है, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू. जिसको पता होता है आप सबसे पहले उसको बुलाओगे कि भैया आ जाओ, ठीक है ना, क्या मामला है जरा बताना हमको भी. वो आएगा, किस कैसे बुलाओगे? This is section 160 CRPC. Attending, asking the person who is acquainted with the facts of the case, they will be called in police station. Okay. Their statement will be recorded as section 161. Nothing to worry. अब वो आएंगे तो चाय नाश्ता तो कराएंगे नहीं, हमसे पूछेंगे भैया क्या हुआ, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे. Section 161 will come into picture. Then अरेस्ट अगर हमको करना है तो हम अरेस्ट भी कर लेंगे. एंड द टाइम नाउ द सर्च इज ऑल्सो देयर. व्हाट इज दैट सेक्शन? दैट इज सेक्शन 165. यहां भी हमारा सर्च भी हो गया है ना. अब अरेस्ट में आते हैं. जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट हिज लिबर्टी इज बीइंग सीज्ड. His freedom is being restricted. And the time in India or in any democratic country, when someone's freedom is restricted, you know, there's a big wave which comes out. Wave, what is that wave? The waves of right, the waves of law, the procedure, which should be fair, just and reasonable. Now, the time you have arrested someone, there is a many law for your protection. Okay. So the time someone is arrested, again CRPC की सारी sections आ जाती हैं, जैसे 40 section 41A, 41B, है ना, सारे judgments आ जाते हैं, जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ बासु एंड सो ऑन. बट अभी हम प्रोसीजरल पार्ट में अगर कंफाइन करें तो टाइम समवन इज अरेस्टेड, section 167 will come. Okay, 167, and I'll say section 169 and section 170 will come. What is that now? अगेन मैं फिर से रिपीट कराता हूं. अफेंस कमिट हुआ था, अफेंस कमिट होने के बाद में इंफॉर्मेशन दी गई थी, हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने अफेंसेस फाइंड आउट किए कौन से हैं. दो ऑप्शन थे पुलिस के पास, नॉट टू रजिस्टर और रजिस्टर. चलो आइडियल केस में पुलिस ने आपकी एफआईआर रजिस्टर कर ली, एंड देन वी हैव कम टू द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाउ. ओके, पुलिस हैज द पावर टू सर्च, call witnesses, inform the person who is acquainted with the facts will be called in police station. They are the witnesses of the case. Okay, जिसको हम बोलते हैं witness. Okay, their statement will be recorded under section 161. Okay, arrest भी हो सकता है कोई इंसान, और अगर अरेस्ट आपने कर लिया, so there is one more thing police can do. What is that? वो confession भी करा सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, you know, confession before magistrate, अगर वो देने की विलिंग में है, देने के इच्छुक हैं. What is that section? 164. Okay, तो हम थे अभी अरेस्ट पार्ट में. The time someone is arrested, section 167, 169 and 170 will come into picture. Let's see 167 first. Now look at this. The general law and the ideal law जब ये बना था तो नहीं पता था कि इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे केसेस में कि 24 आवर से भी ज्यादा लगेगा इन्वेस्टिगेशन में. ओके, सो द जनरल लॉ इज एज पर सेक्शन 167, in general case police has to complete its investigation within 24 hours. You may be shocked to hear. So police has to complete the investigation. The ideal law is within 24 hours. No problem. The time, if suppose police is not able to complete the investigation within 24 hours, what will happen? As per section 167, police has to send the accused to magistrate. Police has to send the accused to magistrate along with the जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आई थी, जो भी रिसीट थी, जो भी जनरल डायरी में एंट्री की थी, जनरल डायरी एंट्री. ओके, और वो पुलिस बोलेंगे कि सर हमें 24 घंटे में करी थी क्योंकि हमने 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाई, और देयर इज द प्रोविजन ऑफ हेबियस कॉर्पस एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी थिंग्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो हम अक्यूज्ड को आपके पास भेजते हैं. सो दे विल सेंड द अक्यूज्ड टू मैजिस्ट्रेट. ओके, द टाइम दे प्रोड्यूस द अक्यूज्ड टू द मैजिस्ट्रेट, नाउ वी आर इन द अरेस्ट पार्ट ओनली. अगेन यहां मैं लिख दे रहा हूं, अरेस्ट में ही है. The time they send the person to the magistrate, they will ask either for the police custody, आपने सुना होगा पुलिस कस्टडी, और
इसको बोलते हैं जेसी, जुडिशियल कस्टडी। ओके, तो अगेन जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस कस्टडी के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगा प्रोसिक्यूशन और डिमांड करेगा कि हमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए इन साहब को अपनी कस्टडी में लेना जरूरी है। ओके, सो द मैक्सिमम टाइम द पुलिस कैन टेक पर्सन इन कस्टडी इज मैक्सिमम फॉर 15 days। ओके, मैक्सिमम फॉर 15 days। कब? ये तब हो रहा है, प्लीज रिमेंबर, ये तब हो रहा है जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर रही है और किसी भी जो अक्यूज था उसको अरेस्ट किया गया है। ओके, जैसे अरेस्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं हो पाई, इमीडिएटली द पर्सन हैज टू बी सेंट टू द मैजिस्ट्रेट एंड दे मे डिमांड फॉर पुलिस कस्टडी। अब 15 दिन की मांगी है तो कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं हम 3 दिन की देंगे, हम 4 दिन की देंगे। हो सकता है बहुत सीवियर ऑफेंस है तो, ग्रेव ऑफेंस है तो 15 दिन की भी दे दे। ओके, और उसके बाद द पर्सन विल इमीडिएटली कम टू जुडिशियल कस्टडी एंड सम टाइम इट हैपेंस दैट कोर्ट मजिस्ट्रेट बोलता है कि नहीं नहीं एक काम करो, 3 दिन को उसको पुलिस कस्टडी में दो, 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में, फिर 2 दिन के लिए फिर पुलिस कस्टडी में ले लेना। तो इसको बोला जाता है इंटरचेंजेबल कस्टडी। क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबल कस्टडी। अब समटाइम्स for some time the person is in police custody and for some time the person is in judicial custody, but it will only happen, पुलिस कस्टडी में कोई इंसान केवल स्टार्टिंग के 15 दिन में ही आएगा। अब मेरी कोई स्पेलिंग गलत होंगी उनको थोड़ा ओवरलुक कर देना। ओके, तो स्टार्टिंग के जो बिगिनिंग ऑफ द 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अरेस्ट है, उसी में ही पुलिस को कस्टडी दी जाएगी, जो भी इन्वेस्टिगेट करनी है, ठीक है, उससे जो भी निकलवाना है, while maintaining balancing the human right also, जो भी निकलवाना है पुलिस कस्टडी दी जाएगी 15 दिन की। सो दैट इज कॉल्ड द पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। मैक्सिमम पुलिस कस्टडी दी जाएगी 15 दिन की। ओके, विच विल, और अगर ऑल्टरनेट है इट विल बी नोन एज इंटरचेंजेबल कस्टडी। ओके, हम अभी अरेस्ट वाले पार्ट पे ही हैं। एक और हमने सेक्शन देखा था यहाँ पर, सेक्शन 169। जनरली 169 एंड 170 बताया नहीं जाता है, बट आई टेल यू नाउ व्हाट विल हैपन। एक केस होता है जहां पर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, जो हमने पहले देखा, उसमें पुलिस विल नॉट इवन गो टू लॉज द एफआईआर, विल नॉट अरेस्ट एंड सो ऑन। अब पुलिस ने इंफॉर्मेशन लॉन्च किया कि भाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस हैज रजिस्टर्ड द एफआईआर एंड हैज अरेस्टेड द पर्सन। ओके, नाउ आफ्टर अरेस्टिंग द पर्सन and before releasing that person, matlab before not releasing, before sending that person to the magistrate, so when you read section 169 then only you will come to know, you have to read it. So पहली चीज क्या है कि before sending that person to magistrate, अगर SHO को या ऑफिशियल इंचार्ज है उसको ये लगता है that there is a suspicion in the case and no offense is made out, you know, कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और इसमें इसको फालतू में फंसा दिया गया है, then the officer in charge has the power to release the person before even sending to the magistrate। और वो क्या भरवाएंगे? एक बॉन्ड भरवाएंगे कि जब भी अगर सपोज, क्योंकि अगर आप पर्सन को रिलीज कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके केस में दम नहीं है, और इससे ये होगा कि आप फ्यूचर में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने वाले, क्योंकि केस में कोई दम नहीं है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो क्या करते हो, वो एक प्रोसीजर आगे की होगी कि जब भी आप किसी को छोड़ते हो आप उससे एक बॉन्ड भरवाते हो। उस बॉन्ड में क्या लिखा हो सकता है? उस बॉन्ड में लिखा हो सकता है कि हमारी तरफ से हमारी इन्वेस्टिगेशन जो हमने स्टार्ट करी है, द वर्ड यूज्ड इज इफ अपॉन द इन्वेस्टिगेशन, when you look at section 169 and 170, the word used is if upon the investigation, not after completion of the investigation। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी सेक्शन 173 में, तो वो बोलता है कि if upon the investigation, when the person is in the custody, or when the accused is in the custody of the police, if officer in charge comes to find out कि there is a suspicion in the offense and so on, he may release the person on bond। और बॉन्ड में क्या भरेगा कि भैया हम तो आपको छोड़ रहे हैं लेकिन हमारे हिसाब से क्राइम नहीं बनता है, लेकिन क्या पता कोर्ट कल के दिन कॉग्निजेंस ले ले, कल के दिन कोर्ट आपको सीधे बोल दे कि नहीं नहीं हमें आपकी क्लोजर रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है और हम आगे बढ़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल इन तलवार केस, अभी मैं उस स्टेज में जाऊंगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वाली स्टेज में। तो तलवार केस में क्या हुआ था, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी
और जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी, कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं मानते आपकी क्लोजर रिपोर्ट, हम सीधे कॉग्निजेंस लेंगे। एंड देन द कोर्ट डायरेक्टली टुक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड मूव्ड अहेड। हम उस स्टेज में जाएंगे बाद में। तो अभी हम उसकी प्रायर स्टेज में कि अरेस्ट हो गया और पुलिस के हिसाब से कोई केस नहीं बन रहा है और पुलिस को पता है कि हम अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे। देन व्हाट पुलिस कैन डू, दे कैन रिलीज यू। ओके, दे कैन रिलीज द अक्यूज्ड कि आप जाओ और जब भी एक बॉन्ड भर दो कि जब भी हम क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे एंड इफ कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि आपको ट्रायल फेस करना है, हमारी तरफ से नहीं करना है, दैट इज ओके, बट इफ कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन कि नहीं नहीं आपको ट्रायल फेस करना है, देन यू विल कम टू द कोर्ट। दिस इज द बॉन्ड विच इज फिल्ड बाय द अक्यूज्ड। दिस इज सेक्शन 167 169 सॉरी। नाउ सेक्शन 170 क्या बोलती है? 170 बोलती है कि अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया एंड इफ अपॉन द इन्वेस्टिगेशन ये पाया गया कि ये जो ऑफेंस कमिट हुआ था वो एक्चुअली में बेलेबल ऑफेंस था, कॉग्निजेबल था बट बेलेबल ऑफेंस था, तो एसएचओ के जो ऑफिसर इंचार्ज होगा उसके पास पावर होगा कि वो उसको बेल में छोड़ सकता है। बेल गिवन टू whom accused by पुलिस इन बेलेबल ऑफेंस। और अगर उनको एक और चीज सेक्शन 170 बोलती है कि अगर उनको लगता है कि आपने क्राइम किया है और सब कुछ किया है तो दे कैन रेफर यू टू द मैजिस्ट्रेट, जो अगेन सेक्शन 167 वाली प्रोसीजर थी। दे कैन सेंड यू टू द मैजिस्ट्रेट और जो भी आपके बेसिक एविडेंस थे, जो भी आपसे रिकवरी हुई थी, आपने एक चाकू पकड़वाया था, आपने एक गन पकड़वाई थी, वो सबको लेके मजिस्ट्रेट के पास आपको दे दिया जाएगा। एंड देन अगेन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी वाला सीन आ जाएगा। तो पहले 169 पिक्चर में आएगी, 169 एंड 170 पिक्चर में आ सकती है, फिर 167 आ सकती है पिक्चर में, या पहले 167 आ जाएगा, 169 और 170 दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बट इट इज ऑल द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये कब का प्रोसीजर है? जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप देखिए इसको क्या क्या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में। दैट इज वाई फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्वेस्टिगेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में? आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, सर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो, विटनेसेस को बुला रहे हो, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट सीज कर रहे हैं आप। ओके, एंड देन यू आर अरेस्टिंग द पर्सन। तो जैसे आप अरेस्ट करोगे, वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अंडर सेक्शन 167, जब यहां पर है, एज आई टोल्ड यू कि आपको इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट करनी है एज पर सेक्शन 167। नहीं करते हैं, यू हैव टू रेफर द पर्सन अक्यूज्ड टू द मैजिस्ट्रेट। ओके, बट एक टाइम ऐसा आता है व्हेन द पुलिस इज नॉट एबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इन 90 days और इन सम केसेस इन 60 days। तो जिन जिन ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल से कम होती है, and if the one more thing, and if the person or if the accused is in custody, either पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, तो अगर इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी, जिसकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है। अगर ये जब 167 पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। जिसकी भी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है उसको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है 90 डेज के अंदर में, और जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है पुलिस को उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है 60 डेज के अंदर में। नहीं करती है तो क्या? व्हाट इफ पुलिस डज नॉट कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ द पर्सन, व्हाट विल हैपन? अक्यूज्ड विल बी इंटाइटल्ड फॉर बेल। डिफॉल्ट बेल जिसको हम बोला जाता है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बेल। तो अगर अगेन 167 में फिर से समझा रहा हूं आपको, पुलिस को 24 आवर में कंप्लीट करना है, पुलिस ने नहीं किया, फर्स्ट स्टेज जहां पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं की, क्या होगा? ही हैज टू सेंड द पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट। अब अगर वो 90 दिन में और 60 दिन में भी जो भी ऑफेंस था उसमें नहीं कर पाती है तो क्या होगा? दैट पर्सन विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। सो जनरली व्हेन द पर्सन अक्यूज्ड पर्सन इज इन जुडिशियल कस्टडी, पुलिस ट्राई टू फाइल द चार्जशीट और द फाइनल रिपोर्ट विद इन 90 days। ओके, क्योंकि अगर उनको पता है कि अगर वो 90 डेज के अंदर या 60 डेज जो भी रेलिवेंट पीरियड उसमें नहीं करेंगे, द पर्सन विल बी इंटाइटल्ड फॉर बेल एंड ही विल बी रिलीज्ड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू इट विद इन टाइम। When it does not happen, you immediately file the bail application and release the person. You take the bail for that person. Okay, so this is all the part of the investigation. Okay, I hope you are understanding this much. Okay,
Should I move on? Okay, I'm moving on. Now, ये मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं. This is all the part of the investigation. जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आपकी होती है, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अपॉन इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था. जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, पुलिस फाइल करती है फाइनल रिपोर्ट. थोड़ा सा प्री ट्रायल प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट विल ट्राई टू मेक इट इजी. फाइनल रिपोर्ट. फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 173. बहुत सारे लोगों ने सुना होगा 173, है ना? अब यहां पर क्या होता है? ये 3 ऑप्शन जाते हैं. कहां पर फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है? फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड इन कोर्ट अंडर सेक्शन 173. लेट्स सी दिस. Now there is a two option, as I told you, section 169 में जैसे मैंने बताया था आपको कि पुलिस को लगता है कि नहीं नहीं इसमें केस में कोई दम नहीं है, तो फाइनल रिपोर्ट में पुलिस फाइल करती है क्लोजर रिपोर्ट. क्या फाइल करती है? क्लोजर रिपोर्ट. या फिर क्या फाइल करती है पुलिस? चार्जशीट. चार्जशीट फाइल करेगी या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी. सो अगेन आई टेल यू, फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट एक नहीं होता है. There are so many people who think that final report and charge sheet is same. No, final report, charge sheet is the part of the final report. What section 173 mention is the final report, not charge sheet. Charge sheet is called when there are specific allegations and there is a specific investigation to that effect, and you put the charge that trial should be proceeded against that person. Trial should be conducted against that person. And when there is a closer report, you don't put any charge. पुलिस बोलती है कि नहीं नहीं इसमें कोई दम नहीं है. जैसे as I was telling you तलवार केस में, ठीक है ना? तलवार केस में क्या हुआ था? पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, ठीक है ना? सो वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. तो जब भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, अगेन नीड टू सी दिस, जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी, देयर आर 3 ऑप्शंस व्हाट द कोर्ट हैज गॉट. Option 1, option 2 and option 3. What is that first option? जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी, so the first option is that court may accept the closer report. Just a minute. Okay. कोर्ट में एक्सेप्ट द क्लोजर रिपोर्ट. वेरी वेल, बहुत क्लियर है कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई एंड कोर्ट में कोर्ट में एक्सेप्ट द क्लोजर रिपोर्ट एंड क्लोज द केस. बहुत बढ़िया. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज कोर्ट के पास ये ऑप्शन है दैट कोर्ट विल से दैट एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नॉट complied with and redirect the इन्वेस्टिगेशन. एक ये चीज हो सकती है, कोर्ट बोलेगी कि री इन्वेस्टिगेट करो मैटर को. हमें जो आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी है, हमें इसमें से कुछ ज्यादा समझ नहीं आया है और वी आर थिंकिंग दैट एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लाइड विद, रीडायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन. तो पुलिस को फिर से चार्जशीट फाइल करने के लिए बोलती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए बोलती है. और तीसरा होता है दैट कोर्ट डज नॉट accept the closer report and directly take the cognizance of the case under section 190 CRPC. Very important word. The first time the word is coming, what is that word? Cognizance of the case. Okay, first time it takes the cognizance of the case. We will come to that. That's a separate different stage. तो हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम समझ रहे थे.
इन्वेस्टिगेशन में फाइनल रिपोर्ट होगी, सब कुछ अरेस्ट जो भी होना था, बेल सब कुछ प्री ट्रायल का पार्ट है, ठीक है। दो ऑप्शन मिले, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई या चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होती है, सो व्हाट विल हैपन, we'll come to that part. Closure report फाइल होती है, there are three options, court may accept the closure report and close the case, elements of investigation जो मैंने लिखवाया यहाँ पर। One more thing you need to remember कि जब भी closure report फाइल होगी, there is a very landmark judgment which says that opportunity has to be given to informant to protest the closure report. What is this called? This is called the protest petition. किसने किसने सुना है ये वर्ड protest petition? आपने एक इंफॉर्मेशन दिया पुलिस को, पुलिस ने इसमें एफआईआर किया एंड देन आफ्टर दैट क्लोजर रिपोर्ट अगर पुलिस ने फाइल कर दी है, तो क्या होता है उस टाइम पे, जो जिसने इंफॉर्मेशन दी थी उसके पास राइट है कि कोर्ट उसको इन्फॉर्म करेगा, ओके, एंड ही मे प्रोटेस्ट दैट केस कि दिस क्लोजर रिपोर्ट इज बैड इन द आइज ऑफ लॉ, दिस क्लोजर रिपोर्ट इज नॉट राइट इन द आइज ऑफ लॉ। व्हाट इज द नेम ऑफ द जजमेंट? नेम ऑफ द जजमेंट इज भगवान Singh versus Commissioner of Police. You can write down Bhagwan Singh versus Commissioner of Police, 1985 Supreme Court. Bhagwan Singh versus Commissioner of Police. Landmark judgment in protest petition. Okay. Now, अब जैसे चार्जशीट फाइल होती है, तो what will happen? Court will take the again cognizance okay under section 190, तो court will take the cognizance of the case. I hope यहां तक सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अभी कुछ नहीं चल रहा था, फिर से मैं रिपीट करा देता हूं। ऑफेंस कमिट होता है, पुलिस के पास जाते हो, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल होता है। कॉग्निजेबल में अगेन पुलिस या तो एफआईआर रजिस्टर करेगी या नहीं करेगी। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करने वाली बात में भी हम गए नहीं है। सो इफ पुलिस रजिस्टर दे एफआईआर, देन देयर इज अ स्टेज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, सर्च पढ़ा हमने, अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड सो ऑन एवरीथिंग, ओके, अरेस्ट चीजें पढ़ी। एंड देन इन्वेस्टिगेशन के बाद आती है फाइनल रिपोर्ट, जो कि 173 में फाइल होती है, सबमिटेड इन कोर्ट। फाइनल रिपोर्ट इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट, क्लोजर रिपोर्ट एंड चार्जशीट। चार्जशीट में डायरेक्ट कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, और अगर क्लोजर रिपोर्ट है तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दूसरी पार्टी को जो इन्फॉर्मेंट था। और कोर्ट हैज थ्री ऑप्शन, कोर्ट में एक्सेप्ट द क्लोजर रिपोर्ट एंड क्लोज द केस, कोर्ट रीडायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कि भैया फिर से इन्वेस्टिगेट करो। और तीसरी चीज है कि कोर्ट विल डायरेक्टली टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द केस। नाउ वी आर इन द स्टेज ऑफ द टेकिंग कॉग्निजेंस। तो अभी तक जो भी स्टेज थी वो स्टेज 1 थी। नाउ वी हैव कम टू स्टेज 2। ओके, व्हाट इज दैट स्टेज 2? कोर्ट टेकिंग cognizance of the case. Court taking cognizance of the case. First thing is we need to understand what is the meaning of taking cognizance. Okay, so cognizance, taking the cognizance means when first time court applies its judicial mind over that matter, over that case. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोर्ट, चलो ये तो हो गया थ्योरेटिकल कि सर आपने बोल दिया था कि जब कोर्ट फर्स्ट टाइम अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। क्या मतलब होता है जुडिशियल माइंड अप्लाई करने का? जुडिशियल माइंड अप्लाई करने का मतलब होता है कि कोर्ट जैसे ही इशुएंस ऑफ प्रोसेस करेगा, इशुएंस ऑफ प्रोसेस आते हैं हम इस चीज में भी, अंडर सेक्शन 204 CRPC हम इसको बोलते हैं, दैट इज वी आर राइटिंग एज स्टेज 3। वेरी रेलिवेंट स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में हमारा सब कुछ था, कंप्लेंट, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन एंड सो ऑन, फाइनल रिपोर्ट। सेकंड स्टेज में कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। थर्ड स्टेज में इशुएंस ऑफ प्रोसेस। इशुएंस ऑफ प्रोसेस क्या होता है? अंडरस्टैंड दिस। आपने इन्वेस्टिगेशन में देखा था कि आप जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे,
आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था, ना, विटनेस के स्टेटमेंट गैदर किए थे, आपने डॉक्यूमेंट्स गैदर किए थे, आपने सर्च करी थी, आपने अरेस्ट किया था, है ना? तो आप कोर्ट को बोलते हो कि हमने चार्जशीट फाइल करी है, नॉट क्लोजर रिपोर्ट, हमने चार्जशीट फाइल करी है और हमारे ये विटनेसेस हैं और ये सब चीजें हैं। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट अपनी प्रोसेस स्टार्ट करती है। व्हेन यू रीड सेक्शन 204, व्हाट इज दैट? कोर्ट will issue summon or warrant to call the witnesses. That is called section 204. कोर्ट बोलेगी कि भैया जो भी है अब हम समन करेंगे, ठीक है ना? Okay, let's see 204 for a while. If you have the Bare Act, issuance of the process, sorry, not witness, it's accused. My fault. Okay, तो कोर्ट क्या करेगी? इशुएंस ऑफ द प्रोसेस करेगी, अक्यूज्ड को बुलाएगी अपने पास में, ठीक है, समन करेगी। अब अगर वो अरेस्टेड है तो ठीक है, और अरेस्ट अगर नहीं है, अरेस्ट है तो जुडिशियल कस्टडी से ही आ जाएगा, और अगर अरेस्ट नहीं है तो उसको समन या वारंट इशू करेगी, भैया आ जाओ, आपका ट्रायल स्टार्ट होने वाला है ना? तो इशुएंस ऑफ द प्रोसेस करती है। इट सेज if in the opinion of the magistrate taken cognizance of an offense there is sufficient ground for proceeding and the case appears to be a summon case, he shall issue summons for the attendance of the accused. किस चीज के लिए समन हो रहा है या वारंट हो रहा है? To procure the attendance of the accused in the court. That is the ultimate object of stage 3. Okay, then इसके बाद क्या होता है? अब प्रोसीजर बहुत सिंपल चलेगी। Then you will come to section 207. आप आ जाते हो कोर्ट के सामने, कोर्ट ने आपको बुलाया सेक्शन 204 में, आप कोर्ट के सामने आ गए। देन सेक्शन 207 विल कम। क्या करोगे आप कोर्ट में आके? आप बोलोगे कि सर मेरे अगेंस्ट में क्या फाइल हुआ है, क्या फाइल नहीं हुआ है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है, ऑल द कॉपीज हैव टू सप्लाई टू मी। सो व्हाट कोर्ट विल डू? कोर्ट विल सप्लाई यू the copy of all investigation, all the charge sheet and so on. Okay, what जो भी witness के statement है आपके against में, that is your right under section 207. Okay, after 207 what will happen? अब कई बार क्या होता है, मजिस्ट्रेट जब ये इशुएंस ऑफ प्रोसेस वगैरह करता है, उसको बाद में ये समझ में आता है जब ट्रायल स्टार्ट होना होता है। यहां पर हम सेक्शन 207 में हैं। मजिस्ट्रेट को ये समझ में आता है कि ये जो ऑफेंसेस हैं, it is these offenses are not triable by me. These offenses are exclusively triable by the session judge or some other judge. Okay, additional session judge. Now stage of section 209 comes. What is that? इसको बोला जाता है committal proceedings. Magistrate मैटर कमिट कर देता है जिसके पास भी वो मैटर रहना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट की तो अपनी एक लिमिट है कि भाई 10 साल या इतने तक का, या जो भी ऑफेंसेस डिपेंड करता है कि इसके वो मैटर सुन पाएगा। नाउ देयर आर स्पेसिफिक ऑफेंसेस व्हिच आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन जज, सपोज मर्डर। ओके, ऐसे केसेस में क्या होता है, मजिस्ट्रेट कमिट कर देगा ट्रायल किसको? सेशन जज को। मैटर सेशन जज के पास में पहुंच जाएगा। जब मैटर सेशन जज के पास में पहुंच जाएगा, कमिटल हो जाएगा, उसके बाद में स्टेज आएगी किसकी? एलिमेंट्स ऑफ चार्ज। अब जो भी मानो सेशन जज के पास पहुंचा है, एलिमेंट्स ऑफ चार्ज सेक्शन 211, और चार्ज फ्रेमिंग, एलिमेंट्स ऑफ चार्ज, और जिसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम किए जाएंगे कि भैया आपके ऊपर, अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज होता है। आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज क्या होता है? इसको मैं लिख देता हूं, आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज। आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज ये होता है, आप ये आर्ग्यू करते हो इस स्टेज में कि योर लॉर्डशिप, the lines which are mentioned in the information or in the FIR is not the part of this section but is the part of another section. Okay, तो सपोज आप बोलोगे कि कोई इंसान अगर मर जाता है, सपोज आपके ऊपर चार्ज है मर्डर का और कल्पेबल होमिसाइड का, आप कोर्ट में चार्ज में ये आर्गुमेंट करोगे कि जो ये स्पेसिफिक चीज फॉल हो रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 299 एंड नॉट सेक्शन 300, एंड रॉन्ग चार्जेस हैज बीन फ्रेम्ड बाय द पुलिस अगेंस्ट मी। तो कोर्ट उसको सुनेगी और कोर्ट उसमें अपना
रीजन देते हुए, हो सकता है आपको बोल दे कि नहीं कोई ऑफेंस, कोई चार्ज नहीं बनता है, तो हो सकता है डिस्चार्ज कर दे आपको, आप यहीं पे फ्री हो गए। या हो सकता है कोर्ट आपको बोलेगी कि नहीं नहीं सही बोल रहे हो आप, और सेक्शन 300 का चार्ज नहीं बनता है, 299 जो भी सेक्शन 302 मर्डर का चार्ज नहीं बनता है, बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज बनता है, तो चार्ज मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। जब ये चार्ज फ्रेम हो जाएंगे तब आती है स्टेज एविडेंस की। ये कौन सी स्टेज में आ गए आपको मालूम है? ये हम स्टेज में आ गए, प्री ट्रायल हमने खत्म कर लिया। दिस टिल हियर it was the procedure of pre-trial. This was pre-trial. Now from here we have entered into the stage of the trial. अब ट्रायल में क्या होगा? ट्रायल में मैंने आपको बताया था कई टाइप के ट्रायल होते हैं, समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायल। ओके, जो भी ट्रायल आप अंडर की कैटेगरी में आते होगे आपका वैसे ही होगा। एग्जामिनेशन होगा ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस ऑफ prosecution, then उसके बाद होगा एग्जामिनेशन एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसमें एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है ट्रायल? पहले एक जो अपने जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने विटनेस लाएगा, पहले उसका एक विटनेस क्या करेगा, अपने पॉइंट को रखेगा, जो भी उनको एग्जामिनेशन होना है पूरा एग्जामिनेशन होगा, फिर जो दूसरा डिफेंस का काउंसिल है वो उनका उसका क्रॉस एग्जामिनेशन रहेगा, दैट इज अ जनरल प्रोसीजर। ठीक है, तो फिर दूसरा विटनेस आएगा प्रोसिक्यूशन का ही, फिर एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर तीसरा विटनेस एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? आफ्टर दैट एक चीज होती है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। ये कौन एग्जामिन करता है? ये होता है मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है अक्यूज्ड को। मैजिस्ट्रेट क्या क्या आपने किया था वो बोलेगा हाँ नहीं, या उसको जो भी बातें बोलनी है वो मैजिस्ट्रेट से अपनी बातें रख सकता है। इस स्टेज के बाद आती है स्टेज एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंस विटनेस। अब अगर डिफेंस के कोई विटनेस है तो अपने विटनेस लाएगा, फिर उसका एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, नॉर्मली। एंड देन फ्रॉम हियर विल कम टू द फाइनल आर्ग्यूमेंट, देन विल कम टू द जजमेंट। यहां पर होगा फाइनल आर्ग्यूमेंट। जैसे ही फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज में आप आते हैं, ये एविडेंस कंप्लीट हुआ, यहां पर आपकी प्री जो ट्रायल वाली प्रोसीजर थी वो खत्म हो जाती है। एंड देन फ्रॉम हियर वी हैव कम टू द सागा ऑफ पोस्ट ट्रायल। क्या होगा पोस्ट ट्रायल में? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, देन हियर जजमेंट विल कम। जजमेंट के बाद क्या होता है? अगेन जजमेंट के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। वी कैन गो फॉर अपील, we can go for review, we can go for execution, we can go for revision। अब जो ये रिवीजन वाली चीज है, रिवीजन बीच बीच में भी होती रहती है, मानो गलत चार्ज फ्रेम कर दिए तो वहां पे भी आप रिवीजन लगा सकते हो। दैट्स ऑल वी विल व्हेन वी स्टडी ऑल दैट इन डिटेल, सो वी आर जस्ट मेकिंग इट सिंपल। सो कंसीडर फॉर नाउ दैट इट इज अ पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर। रिवीजन में कम बिफोर द पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर ऑल्सो। मानो मजिस्ट्रेट ने आपके अगेंस्ट में गलत चार्ज फ्रेम कर दिए जिसमें आप फॉलो नहीं हो रहे थे, फॉल नहीं हो रहे थे, you can file a revision before high court and you can alter the charges, okay, under 482 or जो भी revision की provisions हैं। So revision can also come under the pre-trial procedure or trial procedure, not pre-trial. So this is called the post-trial procedure. तो हम अब फिर से एक बार स्टार्टिंग से हम रिवाइज करते हैं इस चीज को। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, क्योंकि हमने अभी आप देखोगे हमने ये वाला पूरा पार्ट छोड़ा हुआ है। व्हेन पुलिस विल नॉट रजिस्टर द एफआईआर देन व्हाट विल हैपन। ये तो हम चले गए एक आइडियल स्टेज में कि पुलिस हैज रजिस्टर्ड द एफआईआर। नाउ लेट्स सी कहां थे हमने कहां से स्टार्ट किया था। वी सो दिस इज एक्चुअली द जनरल प्रोसीजर फ्रॉम कमिटिंग ऑफ ऑफेंस टू द स्टेज ऑफ जजमेंट। सबसे पहले क्या हुआ था? ऑफेंस कमिट हुआ। ऑफेंस कमिट होने के बाद हम पुलिस स्टेशन भागे। पुलिस स्टेशन में हमने क्या किया? पुलिस ने पढ़ा, पुलिस इस कंक्लूजन पे आया कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या दोनों है। दोनों है तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। इन्फॉर्मेशन में आते हैं।
एज आई टोल्ड यू, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस रजिस्टर करेगी एफआईआर, ललिता कुमारी वाला जजमेंट, ये सब आपको रेलिवेंट है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू। और दूसरा होती है कॉग्निजेबल इफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट डिस्क्लोज द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस विल नॉट रजिस्टर द एफआईआर बट विल सेंड द सेम टू द मजिस्ट्रेट और उसके डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करेगी। नाउ व्हाट इफ पुलिस विल रजिस्टर द एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस विल रजिस्टर द एफआईआर और पुलिस विल नॉट रजिस्टर द एफआईआर। दो ऑप्शन थे हमारे पास। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली क्योंकि पुलिस को कोर्ट कचहरी का डर था। कौन कौन से सर्च के प्रोविजन आ गए, विटनेस, अरेस्ट, ये सारी प्रोसीजर्स आ गई हैं, ठीक है ना, अरेस्ट हमने जजमेंट्स भी देख लिए इसमें, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आ गया। देन अपॉन इन्वेस्टिगेशन के बाद हम पहुंचे फाइनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब फाइनल रिपोर्ट पे। फाइनल रिपोर्ट में हमने दो चीजें देखी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगा, चार्जशीट, चालान जिसको हम बोलते हैं। चार्जशीट होता है कोर्ट डायरेक्टली 190 की स्टेज में आ जाएगा, और अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं तो कोर्ट क्लोज कर सकता है केस, री इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस, और री इन्वेस्टिगेशन करके अल्टीमेटली कोर्ट को इसी स्टेज में आना है। कोर्ट कहीं भी जाए, कोर्ट को कॉग्निजेंस कभी ना कभी, अगर कोर्ट ट्रायल चलाता है तो वो कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई मेंशन इन स्टेज 2 कि कोर्ट कुछ भी करे, कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड। ओके, तो ये दो जो स्टेज है सेक्शन 190 की एंड सेक्शन 204 की, आनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चार्जशीट फाइल करते हैं तो अगेन कोर्ट डायरेक्टली उसमें आ सकता है चीज में। ओके, अब आती है स्टेज 2, कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस, उसके बाद स्टेज इशुएंस ऑफ प्रोसेस, फिर 207, फिर हमारी बहुत बढ़िया प्रोसीजर चल रही थी, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस मच? किसको किसको समझ में आ गया? प्लीज एनीवन, इफ एनीवन कैन टेल मी। विल इन्वेस्टिगेट सोहेल पूछ रहे हैं when 24 hour of investigation the person have to send to court under section 154, when 24 investigation, that's the section 167. After arresting, the police official is bound to present the arrested person before the magistrate within the given time. Yes, Ayush, the time is 24 hour. 24 hour में he has to be produced before the magistrate. लेकिन अगर पुलिस ने 24 में ही आवर में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली तो क्या होगा? तो वो अपनी चार्जशीट फाइल कर देगा और ऑब्वियसली 24 आवर जैसे ही होते हैं वो कोर्ट के पास जाएगा। सो 24 आवर पीरियड इज गिवन। अंडरस्टूड सर, ओके गुड। नाउ हमने एक चीज देखी थी इसमें, ये तो हम एज आई वाज टेलिंग यू, हम ये एकदम आइडियल वर्ल्ड में चले गए कि पुलिस कितनी अच्छी है, पुलिस हैज रजिस्टर्ड द एफआईआर, वाओ, पुलिस हैज understood our grievances, that it's a cognizable offense, very beautiful. But most of the time it happens that police, even your information is disclosing the cognizable offense, police has not registered the FIR. Then what will happen? I'm talking about this stage. Then what you do, police will not register FIR, then what options you have got? Options तो होता क्या है, we will go to section 154, let's go to section 154 subsection 3. क्या वर्ड यूज किया गया है? that when police has not registered the FIR or the first information, आप क्या करते हो, जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आपका नागपुर हो गया, पुणे हो गया, इसमें डीएसपी होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो यू इमीडिएटली गो एंड राइट एन एप्लीकेशन टू द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन दिल्ली वी राइट एन एप्लीकेशन टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, टू डीसीपी, ओके। एंड देन 154 के में हम यहां पर जाते हैं 154(3) में, एंड 154(3) में 98% केसेस में ऐसा होता है, 99% केसेस में ऐसा होता है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, डीएसपी हायर ऑफिसर, he also does not care about your complaint, what you have written. Now what options you have got? Then you move to the magistrate. You move to magistrate under section 156 subsection 3 CRPC, and you tell the magistrate that, see, the offenses were cognizable in nature, but police has failed in its duty. The police has failed in its duty to register the FIR, and as per Lalita Kumari judgment, they should have registered the FIR. And I have also made an application to DSP
और जो डीसीपी थे, ठीक है ना, but they have also not taken into consideration. So you move to magistrate, and then from here magistrate has power to direct the police to register FIR. ठीक है, अब पुलिस को डायरेक्ट कर दिया मैजिस्ट्रेट ने FIR करने के लिए, देन अगेन द सेम प्रोसीजर विल स्टार्ट. कहां से स्टार्ट हो जाएगी प्रोसीजर? जो हमने पढ़ी थी इन्वेस्टिगेशन से, फिर से वही चीजें आ जाएंगी, ये अरेस्ट और ये और वो जो भी हमने देखी थी. Okay, and then we have studied after that. I hope you understood this also. So both the options we have got. So police will register the FIR. Again, directly we are on that point. पुलिस रजिस्टर नहीं करती है FIR, हम 154(3) एंड देन 156(3) CRPC में मजिस्ट्रेट के पास जाके रजिस्टर FIR करा के फिर से वही चीज हो जाएगी. ठीक है, देन अब हम चलते हैं अगेन वन इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वाज गोइंग टू टेल यू. सी सारे, अब होता क्या है, कई बार पुलिस, बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये, और बहुत बाद तक हम सब लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं. किस चीज में? कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो अफेंस होता है वो कॉग्निजेबल अफेंस होता है, बट मजिस्ट्रेट भी आपकी बात नहीं सुनता है. मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, आई एम नॉट फाइंडिंग इट अ कॉग्निजेबल अफेंस. और अगर आपको इतना भरोसा है कि कॉग्निजेबल अफेंस है और FIR होनी चाहिए या हमें ट्रायल करना चाहिए, तो फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200. कंप्लेंट अंडर section 200. This is also very relevant. Okay, so there's a complaint under section 200 and we'll see in this कब फाइल होगी है. तो कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली, एक तो बहुत सिंपल है, सेक्शन 499 IPC read with section 199 CRPC. 199 CRPC क्या बोलती है कि डिफेमेशन का कोई भी केस होता है तो कोर्ट क्या करती है, उसकी कंप्लेंट ही रजिस्टर करनी पड़ेगी आपको. एंड नाउ यू विल बी कॉल्ड एज कंप्लेनेंट. ओके, इसकी आप FIR नहीं करते हो. सो यू डू नॉट गो टू पुलिस स्टेशन एंड से देखो डिफेमेशन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, व्हाई यू नॉट रजिस्टरिंग द FIR. इट विल नॉट हैपन लाइक दैट. एंड इवन इफ यू लुक एट फर्स्ट शेड्यूल ऑल्सो, इन फर्स्ट शेड्यूल आपको सारे सेक्शंस मिलेंगे एक लाइन से, सेक्शन 497, 498, 490 कैपिटल A, बट यू विल नॉट गेट सेक्शन 499 under first schedule. You can check it, you can verify it. You will not get section 499. Why? Because 499 is a complaint case. It is specifically given under section 199 CRPC, defamation. So you file a complaint before magistrate. ठीक है, कि आप इसमें डायरेक्टली आप क्या करिए, कॉग्निजेंस लेके प्रोसेस को इशू कीजिए. ठीक है, इशुएंस ऑफ द प्रोसेस, अक्यूज्ड को डायरेक्टली समन होता है इसमें. विल कम टू दैट पॉइंट. नाउ समटाइम दिस इज द वेरी रेलिवेंट पार्ट, दिस वन. अब क्या होता है कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 200 CRPC. क्यों? रीजन क्या होता है कि कई बार हम चाहते हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो, पुलिस चार्जशीट फाइल करे, पुलिस का प्रेशर अक्यूज्ड पे पड़े. ठीक है, और कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हम वाई टू वेस्ट टाइम इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वी डायरेक्टली फाइल द 200 कंप्लेंट. If police has not registered the FIR, I'm talking about that point. Okay, तो 156(3) में क्या होता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, कोर्ट डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर द FIR. देन देयर इज अ स्टेज ऑफ चार्ज शीट, फाइनल रिपोर्ट, प्रेशर ऑन द पर्सन एंड सो ऑन, and then section 190 and then section 204 comes. जब भी आप सेक्शन 200 में कंप्लेंट फाइल करते हो, there is no funda of charge sheet. Okay, no funda of charge sheet, no involvement of police. Now what will happen? So here दोनों में से कुछ भी हो, court will take the cognizance directly, section 190, and then आप सीधे जाएंगे सेक्शन
204 में अक्यूज्ड को डायरेक्टली कोर्ट समन कर लेगा, जो भी अक्यूज्ड इन द सेंस जो भी आपने डिफेमेशन का केस लगाया, व्हाटएवर केस यू हैव फाइल्ड. सो सम टाइम व्हाट हैपेंड, अब मुझसे जैसे आई वाज टेलिंग यू, लोग पूछते हैं कि सर कई बार हम 156(3) मैंने एडवोकेट्स को देखा है फाइल करते हुए के दे फाइल द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 एंड आल्सो अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी. व्हाट इज दैट? कई बार आपको बहुत मिलेगा ये देखने. तो होता क्या है, कई बार जो मजिस्ट्रेट होते हैं दे डू नॉट direct the police to register the FIR. Okay, they do not direct, so they ask you कि अगर आप they ask the complainant or the informant, the complainant, कि अगर आपको इतना भरोसा है कि आपका केस इतना स्ट्रांग है और सच में अक्यूज ने अगर कुछ किया है, then you file a complaint under section 200. when you read 200 it says कि जो भी कंप्लेनेंट है या उसके विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन कोर्ट करेगा, प्रायर एग्जामिनेशन. ठीक है, उनका एग्जामिनेशन होगा अंडर सेक्शन 201. सेक्शन 201 में उनका एग्जामिनेशन होगा एंड विटनेसेस इफ एनी, एंड कोर्ट उसकी बातों में भरोसा करके जो भी वो स्टेटमेंट देगा, कोर्ट सीधे 190 में आके मतलब कॉग्निजेंस ऑटोमेटिकली कॉग्निजेंस हो जाता है जैसे इशू इन प्रोसेस करती है, सेक्शन 190 से 204 में आ जाती है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट, नथिंग इज देयर. ओके, नाउ दोनों का प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है? 156(3) मजिस्ट्रेट के पास हम जाएं और बोलें, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर वो कौन सा टाइम है हम जब मजिस्ट्रेट को बोले कि नहीं नहीं हमें पुलिस की जरूरत है, और हम बोले कि नहीं नहीं हम सीधे डायरेक्टली हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं, हम सीधे अपना आपको एग्जामिनेशन करके हम सीधे ट्रायल में आगे बढ़ जाते हैं. व्हाई टू वेस्ट टाइम इन पुलिस फाइलिंग द चार्जशीट एंड सो ऑन, बिकॉज सम टाइम इट हैपेंस पुलिस डज नॉट फाइल द चार्जशीट फॉर 3 years and 4 years आल्सो. इट हैपेंस क्योंकि इफ यू लुक एट सेक्शन 173 और 167, there is no time period for filing the charge sheet actually. If the person is arrested, if the person is in custody, then the time period is given. But if the person is not in custody, then the time period is not given. The word under section 173(1) is used is police will file the charge sheet as soon as possible. Okay, but in my case also police has not filed the charge sheet. I registered the FIR in 200 this year 2000 this 2016. Okay, 4 years back I registered the FIR. Police has not filed the charge sheet. Now in these cases what happens? What is the practical difference? मैं मजिस्ट्रेट के पास जाता हूं और मुझे जब लगता है कि नहीं मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है किसी भी क्राइम के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड पुलिस असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, आई आस्क द मैजिस्ट्रेट अंडर इन दिस फर्स्ट वाला पार्ट that kindly direct the police to investigate the matter because I do not have the evidences. Okay, only police can do. Police can go inside and police can enter the company, can seize a document, okay, can collect the material, can record the statement of the witness. I do not have anything. Okay, but when you have something, when you suppose if the offense is documentary offense, okay, forgery का case है, okay, or criminal breach of trust का case है, cheating का case है, you have the document. So what you do, you directly move for 200. You have the document, you do not require the assistance of the police. Police court will directly take the cognizance as per section section 200, 201. Court will take the cognizance under section 190 and 204. And again, after that, the same procedure will follow. Which one? Section 207 and so on. Okay. So this is the pre-trial procedure which I wanted to make you understand. Okay. तो बहुत तीन चीजें मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा इन 2 minutes. क्या ऑफेंस कमिट हो रहा था, ऑफेंस कमिट होने के बाद में हम पुलिस के पास जाते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, नहीं होता है, नहीं होता है पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, होता है तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, अगर नहीं करती है तो अगेन वी हैव टोल्ड यू द ऑप्शन 154(3) एंड सो ऑन. एफआईआर रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा आता है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, सेक्शन 204 डायरेक्टली एंड 207, 209 एंड ट्रायल एंड सो ऑन. ओके, फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200. कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 499 में जाएगा और आपको लगता है कि आपका केस 200 में जाना चाहिए, यू हैव इनफ एविडेंस, यू फाइल द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200. व्हेन पुलिस डज नॉट रजिस्टर योर एफआईआर, यू डायरेक्टली मूव टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 एंड नॉट अंडर सेक्शन 156(3). और फिर आप बोलते हो कि मेरे पास इनफ एविडेंस है, सेक्शन 190, 204, 207 एंड देन नॉर्मल प्रोसीजर चलती है. ओके, सो procedure of arrest. Ayush Vardhan, you have asked me the procedure of arrest.
Ayush, procedure of arrest, again, it will take, as I told you, जब मैं arrest बता रहा था आपको, that arrest is such a part that when liberty is seized, the waves come out. Waves come out means there are so many laws for the same. So in this 5-minute time, I cannot make you understand the procedure of arrest. You may read the DK Basu versus State of Bengal case. Okay, then Riddhi. Yes, sir. So further, I'll move to the vote of thanks. I, Riddhi Jindal, on behalf of Team Law Internships, would like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Pavan Rele, sir, for taking out time from his busy schedule and interacting